Assalamu alaikum to all the beautiful people out there. Thank you so much for coming here and interacting with me in this way. I welcome you all to my YouTube channel, that is Learn with Zumbul. You know what? One word can change how people see you. Don't you people believe me? You should believe me actually. Yes, it can be the right word at the right moment. Yes, it makes you sound comfortable, confident, smart, and impressive. And believe me, it's not about using fancy English and complicated language, but it's about learning simple and effective method of usage of the words. That you are using the right words at the right moment. I mean to say suitable word. Yes, little words are secret tools for you. You can use them either in class, in interviews, or anywhere else in casual meetings. You can focus on your words and impress people in the way you want. So, buckle up, stay with me, and let's unlock a brand new vocab words for you today. Welcoming you all to the day 11 of our daily vocab session that we have brought for you people, in which we basically bring 5 new words each day for you people. We discuss their pronunciation, their synonyms, antonyms, and the usage of those words and the variation. And we understand how to use them so that we become able to use them, to practice them, and to beautify our language. This session is equally important for the students, for householders, and all the people who are seeking any help in the English exam. J. But before diving into the vocab words for today, do go and watch the videos for previous 10 days. You will learn a lot of new words. Starting the words for today, word 1 is yes, deteriorate. Deteriorate does mean to become worse over time, यानी कि ख़राब होना या बिगड़ जाना. Synonyms में इसके हैं हमारे पास decline, weaken या degenerate. These are the words which are used instead of deteriorate. Antonyms में we have improve, to strengthen या to enhance. These words are the antonyms of the word deteriorate. सेंटेंस के अंदर इसका यूसेज अगर हम देखें तो हिज हेल्थ स्टार्टेड टू डिटेरियोरेट रैपिडली, मतलब उसकी हेल्थ जो है ना बिगड़ना स्टार्ट हो गई तेज़ी के साथ. द नेक्स्ट वर्ड इज़ एकोलाइट. एकोलाइट मीन डिवोटेड फॉलोअर असिस्टेंट. बहुत ही एक पैरोकार हो या मददगार हो या फिर एक ब्लाइंड फॉलोअर हो, बहुत ही फेथफुल फॉलोअर हो, तो उसके लिए हम ये वर्ड यूज़ करते हैं. इसकी सिनोनिम्स में वी हैव फॉलोअर, असिस्टेंट या डिसिपल. These are the words which are used instead of the word acolyte. और इसके एंटोनियम्स में वी हैव लीडर, ओपोनेंट और राइवल. अब जाहिर सी बात है जो ओपोनेंट होगा ही इज़ नॉट द फॉलोअर, और जो राइवल है ही इज़ नॉट अ फ्रेंड ऑफ फॉलोअर, और जो लीडर है ही वी कैन से कि लीडर knows to stand alone and he does not follow anyone. इसी तरीके से वी हैव अ सेंटेंस द पॉलिटिशियन वॉज सराउंडेड बाय लॉयल एक्कोलेट्स, यानी कि जो पॉलिटिशियन है ही वॉज सराउंडेड बाय वेरी फेथफुल फॉलोअर्स. उनकी वो जहाँ पे भी घूमता है तो उनके जो सराउंडिंग में जो लोग होते हैं, दीज आर द फॉलोअर्स ऑफ दैट पॉलिटिशियन. उनकी अपनी एक टीम होती है, उनके अपने फॉलोअर्स होते हैं. तो दिस सेंटेंस इज रिगार्डिंग दैट थिंग कि जो पॉलिटिशियन है दैट वॉज सराउंडेड बाय द एक्कोलेट्स ऑफ दैट पर्सन. द नेक्स्ट वर्ड इज hilarious. Hilarious is the word that is used for extremely funny thing. मतलब ये चीज़ कितनी बहुत ज़्यादा मज़ाहिया है, और इसको दैट इज़ सो हिलेरियस आई कांट स्टॉप लाफिंग. तो इस तरीके से
इसके सिनोनिम्स हैं फनी या अम्यूजिंग या एंटरटेनिंग, कोई थिंग होती है तो। एंटोनियम्स में वी हैव अ सीरियस थिंग, जिसको सुन के कभी भी हंसी नहीं आती। एंड बोरिंग, मोनोटोनस चीज़ है, बहुत बोरिंग है। एंड इसको सुन के या इसको देख के कभी भी वी कांट एंजॉय। या फिर डल। सेंटेंस के अंदर भी द कॉमेडियन टोल्ड हिलेरियस जोक, यानी कि इतना फ़नी उन्होंने जोक बताया कॉमेडियन ने, तो द सेंटेंस इज़ अबाउट दैट थिंग कि कॉमेडियन जो है वो बहुत एक फ़नी या अम्यूजिंग एंटरटेनिंग जोक बता रहा था। उसके बाद है हमारे पास हेजिटेट। हेजिटेट डज मीन टू पॉज बिफोर सेइंग समथिंग या फिर डूइंग समथिंग, मतलब हिचकिचाना या फिर रुक जाना कि हेजिटेशन हो रही है ना, बात नहीं कर सकते पब्लिक में, तो इस तरीके से। अच्छा, इसके सिनोनिम्स में हमारे पास हैं वर्ड्स पॉज या वेवर या डिले। ये सब जो वर्ड्स हैं, रोक देना किसी चीज़ को, या फिर ऑकवर्ड फील हो रहा है, या वी आर फीलिंग शाय इन फ्रंट ऑफ फेसिंग दीज पीपल। अच्छा, इसके एंटोनियम्स में वी हैव टू डिसाइड, टू एक्ट या टू प्रोसीड, यानी कि हम कर लेते हैं, वी प्रोसीड, वी एक्ट, हेजिटेशन नहीं हो रही है हमें। कॉन्फिडेंस की मेजरमेंट के लिए ये वर्ड यूज़ होता है, और इसके सेंटेंस के अंदर वी हैव डोंट हेजिटेट टू आस्क अ क्वेश्चन। आपको बिल्कुल भी नहीं घबराना चाहिए क्वेश्चन करते वक्त, तो रुकना नहीं चाहिए, यू हैव टू आस्क। द नेक्स्ट वर्ड इज़ हैज़र्ड। हैज़र्ड डज मीन डेंजर और रिस्क, कोई भी खतरा या कोई भी नुकसान हो तो उसके लिए वो यूज़ द वर्ड हैज़र्ड। हैज़र्डस कोई चीज़ होती है, नुकसानदेह कोई चीज़ होती है, या फिर इस तरीके से वी यूज़ दिस वर्ड। इसके सिनोनिम्स देख लेते हैं, वी हैव अ डेंजर, रिस्क या फिर थ्रेट। एंटोनिम्स में वी हैव अ सेफ्टी, सिक्योरिटी या प्रोटेक्शन। दीज आर द वर्ड्स विच आर यूज्ड एज एंटोनिम्स ऑफ द वर्ड्स हैज़र्ड। सेंटेंस के अंदर वी हैव अ स्मोकिंग इज़ हेल्थ हैज़र्ड, which means smoking is नुकसानदेह for your health या dangerous for your health. And with this word we end the day of vocab session, that is day 11. And लेकिन जाने से पहले we have a task for you. The task is that you will comment a sentence with the word acolyte. आप जो हमने आज वर्ड डिस्कस किया है, दैट इज़ acolyte, आप उसके साथ एक सेंटेंस जो है ना वो कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट कर देंगे। एंड कीप फॉलोइंग अस, कीप लिसनिंग अस, स्टे पॉजिटिव, एंजॉय द वेदर, and stay tuned with us as well. Thank you so much. If you have not subscribed the channel, please go there and subscribe the channel. Thank you so much. Allah Hafiz.